गाइस वेलकम बैक टू द इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया और यूएसए हमारा एक सुपर सोल पावर के रूप में हमारे सामने आया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, which was the first Soviet republic to declare its independence from Soviet Russia? Ukraine, Armenia, Georgia, Lithuania. Yes, first answer है हमारा ऑप्शन डी, लिथुनिया। The Soviet Union invaded Afghanistan in the year. सोवियत यूनियन ने अफगान पर कब आक्रमण किया था, अटैक किया था? 1975, 1977, 1979, 1981. Yes, second का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1979। When did the Soviet Union collapse? सोवियत यूनियन का पतन कब हुआ था? 1989, 1990, 1991, 1992। Yes, C is the right answer। बच्चे इस चैप्टर में सभी डेट्स एंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइन्यूटली गो थ्रू करना। गोर्बाचेव रिजाइंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। 25th December 1991, 24th December 1991, 21st December 1991, 19th December 1991. Yes, option A is the right answer. 25th December 1991. Dash was the biggest attempt in human history to abolish the institutions of private property. The American Revolution, the French Revolution, the Industrial Revolution, the Russia Revolution. B option is the right answer. Russia took over the USSR seat in the UN in. रशिया ने कब यूएन में सीट लिया था? यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। दिसंबर 1991, नवंबर 1989, दिसंबर 1990, अक्टूबर 1992। So December 1991 is the right option. Who invaded Afghanistan in 1979? किसने 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक किया था? यूएसए, रशिया, सोवियत यूनियन, पाकिस्तान। Yes, C is the right answer, Soviet Union. Who came up as a national hero in opposing the coup? Joseph Stalin, Gorbachev, Boris Yeltsin, Fidel Castro. Option C is the right answer, Boris Yeltsin. The successor country to the Soviet Union is Russia, Uzbekistan, Belarus, Georgia. Option A is the right answer, Russia. Which one of the following was not given primacy by the makers of the Soviet system? Abolition of private property, society based on the principle of equality, no opposition party to be allowed, no state control over economy. Option D is the right answer. The European Eastern countries were called the dash. ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को हमने बच्चे एक नाम दिया था वर्ल्ड का, तो वो कौन सा वर्ल्ड था? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड। यस, बी इज द राइट आंसर, सेकंड वर्ल्ड का नाम उन्हें दिया गया था। विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तजाकिस्तान। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज लॉन्च्ड ऑन। कब किया गया था ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? ये यूएसए ने किया था। 19 मार्च 2004, 21 अप्रैल 2003, 19 मार्च 2003, 23 मार्च 2003। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 19 March 2003. Which among the following statements that describe the nature of Soviet economy is wrong? Socialism was the dominant ideology. State ownership, people enjoyed economic freedom. Every aspect of the economy was planned. Option C is the right answer. People enjoyed economic freedom. ऐसा बिल्कुल नहीं था, लोगों के पास किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी। The most severe conflict took place in the Balkan Republic of Bulgaria, Greek, Macedonia, Yugoslavia. Yes, Yugoslavia is the right answer. Option D right रहेगा हमारा। The country that gave the aid and technical assistance for steel plants in India is
कौन सी कंट्री ने हेल्प किया था इंडिया को स्टील प्लांटिंग के लिए? द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, रशिया एंड जापान. यस, रशिया, यूएसएसआर इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा. अकॉर्डिंग टू द सोवियत सिस्टम, व्हाट वाज द foremost priority of the state? Ideals of capitalism, idealism of communist party, ideals of socialism, ideals of single party. So option C is the right answer. Ideals of socialism. The Berlin Wall fall in. बर्लिन वॉर को कब गिराया गया था? नवंबर 1989, दिसंबर 1989, जनवरी 1990, फरवरी 1990. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. बच्चे इसे बनाया कब गया था? इसे बनाया गया था जब आपका कोल्ड वॉर बहुत पीक पर था और वेस्ट बर्लिन को जर्मनी से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता खुर्सेव, लियोनी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. The USSR came into being after the socialist revolution in Russia in the year. USSR कब आपका आया था रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कब आया वहाँ पर? 1915, 1916, 1917, 1918. 1917. Option C is the right answer. In which year Gorbachev became the General Secretary of the Communist Party of USSR? 1989, 1990, 1987, 1985. Option D is the right answer. सभी ईयर्स एंड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द वर्ल्ड. कैपिटल एंड कम्युनिस्ट, रिच एंड पुअर, ईस्ट और वेस्ट, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग. यस, ऑप्शन ए इज द राइट. कैपिटल एंड कम्युनिस्ट. कैपिटल मीन्स प्राइवेटली ऑन्ड होता है एंड कम्युनिस्ट मीन्स स्टेट का कंट्रोल रहता है. चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुल इनटू डैश पार्ट्स. कितने पार्ट्स में चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट हुआ था, टूट गया था? 5, 4, 3, 2. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनटू 2 पार्ट्स. वाई सोवियत सिस्टम लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी सून. सोवियत सिस्टम ने अपनी पॉपुलैरिटी को इतनी जल्दी क्यों खो दिया था? ऑप्शंस है हमारे पास. इट बिकेम मोर डेमोक्रेटिक, इट एक्सप्लॉइटेड पीपल, इट बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटियन, people were fed up of the system. So option C is the right answer. It became very bureaucratic and authoritarian. Which of the following is not a major oil and gas producer of Central Asia? Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Brazil. Yes, option D is the right answer. The people who were with Gorbachev became disillusioned as they felt that he did not adequately dash his own policies. वो लोग जो गोरबाचेव के साथ थे उन्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि ही इज़ नॉट गोइंग टू कॉप अप, कि वो अपनी पॉलिसीज़ को ही नहीं, खुद ही नहीं मतलब कंट्रोल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. तो ऑप्शंस है हमारे. सपोर्ट, क्रिटिसाइज, कंसर्न, डिफेंड. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिफेंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट. ग्लासनोस्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास. ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस. जब गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को पब्लिक के लिए ओपनली उनको स्प्रेड कर देती है, पब्लिक अफेयर्स में लेकर आ जाती है सारी इन्फॉर्मेशन को, उसे हम कहते हैं ग्लासनोस्ट. इन विच ऑफ द 2 रिपब्लिक इन रशिया हैड वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट? Georgia and Armenia, Chechnya and Dagestan, Russia and Belarus, Estonia and Latin. So option B is the right answer, Chechnya and Dagestan. Which currency declined after the implementation of shock therapy? कौन सी करेंसी की वैल्यू जो थी वो कम हो गई थी शॉक थेरेपी के बाद? रूबल, डॉलर, पाउंड, यूरो. यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. रूबल की वैल्यू जो थी वो कम हो गई थी. शॉक थेरेपी गोरबाचेव के टाइम पर आई थी. हु बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन था जो सोल सुपर पावर के रूप में हमारे सामने आया? चाइना, रशिया, यूएस, ब्रिटेन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूएस.
The model of transition influenced by the World Bank and IMF came to be known as USSR, shock therapy, United Nations, CENTO. Yes, option B is the right answer, shock therapy. What among the following was the result of the disintegration of USSR? USSR के disintegration के क्या कारण थे? End of the Cold War? Yes. End of the Second World War, Great Economic Depression, all of the above. So option D is the right answer. ये सारे ही reasons थे बच्चे इसके disintegration के. What type of economy was proposed by the shock therapy? Communist, liberal, socialist, capitalist. So option D is the right answer, capitalist. What was the final and most immediate cause of the disintegration of the USSR? Gorbachev's policies, Western development, Second World War, the rise of nationalism and desire of sovereignty with various republic. Yes, option D is the right answer. In Soviet system, who used to control the economy? Businessmen, state, people, none of the above. So option B, state का control होता था Soviet system में. So these were the main important questions of second chapter, the end of bipolarity. So अभी ये क्वेश्चन जो है हम रिवाइज करेंगे. So let's check. आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. Which Eastern European countries were called the फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड? प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिएगा. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.